Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्ण। तो मैं चालू करते हैं अभी। आज जो मैं चालू करने जाता है अभी, हम लोग सब मिलके चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 19 नंबर श्लोक में अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रयासभद्रेशो नित्यं भगवतो शिवाय भगवतो उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नस्तिके। सदाशिव्य श्रीमद्भगवती कथा ईश्च श्रवणमात्रेण हरिषितं समस्ये। निगमकल्पतरुगलितं बलमुखं स्मोकं तद्दमुक्षामुदं हरे कृष्ण। तो मैं अभी श्लोक का पठन करेंगे। जय श्री प्रभुपाद। श्लोक नंबर 19। अस्य अनुभावं भगवान्, अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः, वेदगुह्यतमं शिवः देव ऋषिः नारदा, देव ऋषिर्नारद साक्षात्, देव ऋषिर्नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप, भगवान् कपिलो नृप। अस्य अनुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः, देव ऋषिः नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। अनुवाद, translation and purport by His Divinity Bhaktivedanta Thakur. Jai Shloka Jagat Guru Shloka Prabhupada Jai. Translation: O King, Lord Shiva, Narada, the sages amongst the demigods, and Kopila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about His glories through direct contact. Purport: pure devotees of the Lord are all Buddhas, or persons who knows the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansion of His planetary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the actions of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukdeva, Goswami, Bali Maharaj, and Yamaraja. Bhishmadev, although one of them has mentioned only 3 important names of the 12 who knows the glories of the Lord, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, one of the great Acharya in the modern age, explained that Anubhava, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotees in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Such different understanding of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving
by the Lord in the actions of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. Shukadeva Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of behave bhava and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and the devotees. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotees becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotees into material trouble means delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotees is 100% attracted towards the transcendental loving service of the Lord. Thus, the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotees are different from the tribulations resulting from vicious action. All those glories of the Lord are especially known to the great Mahajanas like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara, and Bhishma, as mentioned above, and one is able to grasp it by their grace. Hare Krishna. Namo Vishnu. Namo Vishnu. Krishna. Namo Vishnu. Krishna Karan Shri Dinavadya Jagatpati Kabhishek Takadana Karan Passion is Jana Pavna Krishna Jai Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. तो हम लोग कभी देखेंगे अभी 19 नंबर श्लोक में तात्पर्य में, और इसमें प्रभुपाद ने क्या बताया, तो इसमें जो 19 नंबर श्लोक में हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है ना, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक पे जैसे बताया गया, ओ किंग लॉर्ड शिवा नारदा द सेजेस अमंग्स द डेमिगॉड एंड कोपिला द इनकार्नेशन ऑफ गॉड हेड ऑल नोन very confidentially about his glories to direct contact. तो यहाँ पे जो बताया गया, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान का महिमा का बारे में जानकारी रखता है। कौन? ये जो 12 महाजन जो है, और ये जो 12 महाजन ये भगवान का बारे में जानकारी रखता है। तो जैसे एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे एक पिता उनका पुत्र का बारे में हमेशा उनका नॉलेज में होता है, पुत्र कहाँ गया, कहाँ खाता है, क्या, क्योंकि पुत्र का साथ उनका जो है हमेशा एक जानकारी होता है। तो यह मतलब डायरेक्ट एक प्रत्यक्ष संपर्क होता है पुत्र का। तो उसी तरह है, तो जैसे पुत्र का बारे में वो जानकारी होता है, पिता को पुत्र को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो उसी तरह जो 12 महाजन है ना, ये 12 महाजन का साथ भगवान का एक संपर्क होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो ये प्रत्यक्ष संपर्क का कारण है, तो भगवान का गुह्यतरम या सब कुछ जानकारी रखता है। तो महाजन हमको, तो 12 महाजन को क्या है, हमको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है तात्पर्य में, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑल बोधास। तो भक्त हमेशा भगवान का क्या होता है, भाव में लगा रहती है। तो कोई भक्त जब भगवान को सेवा करता है तो किसी ना किसी भाव में सेवा करता है। तो
किसी ना किसी भाव नहीं तो किसी ना किसी रस को आदान प्रदान करके तो भगवान के साथ जो उनका संबंध जोड़ाता है और भगवान का क्या है सेवा करता है। जैसे हम लोग ये तो हम लोग को जानकारी है थोड़ा से, जैसे 12 प्रकार का रस होता है तो उसमें से क्या होता है 5 प्रकार का जो रस क्या ये पूरा महत्वपूर्ण रस होता है। तो ज्यादा करके ये 4 प्रकार का रस में भक्तों 5 प्रकार का रस में भक्तों भगवान का सेवा करते हैं। जैसे माधुर्य, वात्सल्य, साक्ष्य, दास्य, शांत। तो माधुर्य रस क्या होता है प्रेम का भाव होता है, वात्सल्य पुत्र का भाव होता है, दास्य दास का भाव होता है, साक्ष्य मतलब भगवान का मित्र का साथ मित्र का जैसे भगवान को सेवा करते हैं, शांत शांत भाव में भगवान को सेवा करते हैं। तो भगवान का जो 12 महाजन मतलब 12 महान भक्त है, ये 12 महान भक्त के साथ भगवान का क्या है व्यक्तिगत क्या है पर्सनल संबंध है। ये 12 महाजन में जब अभी जैसे बताया भीष्मदेव का एक है कि 12 महाजन में सबका लेवल क्या है, किसी का जैसे ऊपर नीचे नहीं होता है। मतलब ये जो 12 महाजन का जो लेवल है भगवान का पास एक ही है। भगवान भक्ति में कोई ऊंचाई नीचाई नहीं होता है, किसी भक्ति में ऊंचाई नीचाई नहीं देखता है। तो भगवान का भी क्या होता है भगवान का भी क्या माने किसी मतलब किसी भक्त से पार्शियलिटी नहीं करते, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। तो एक पार्शियलिटी होता है तो है इस प्रकार का पार्शियलिटी, कैसे अभी जैसे डेबुटीज और नॉन डेबुटीज, तो उसमें थोड़ा से भगवान का पार्शियलिटी होता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति और भक्त में थोड़ा से फर्क होता है। तो जो भक्त को तो भगवान क्या है हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए भगवान ख्याल रखते हैं क्योंकि जो भक्त होता है ना, भक्त हमेशा भगवान का कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। और सामान्य जो व्यक्ति वो क्या करते हैं भौतिक कार्यों में लगा रहते हैं, कैसे पैसा कमाने का है, कैसे आगे जाके मतलब अपना उन्नति करना है, मतलब अपना जो मतलब ट्रांसेंडेंटल उन्नति है, अपना जो भगवान के बारे में कैसे लगा रहते हैं, उसको वो उन्नति नहीं होता है। वो क्या चाहता है हमको कैसे ज्यादा पैसा बनाने का है, बंगलो बनाना है वह उसको वही चिंता रहता है। तो इसलिए भगवान क्या है भगवान भक्तों का ऊपर ज्यादा मतलब भगवान का ध्यान रहता है। तो क्योंकि भक्त जो है हमेशा भगवान का ख्याल रखते हैं, भगवान भी भक्त को ख्याल रखता है। तो भगवत गीता में जैसे बताया गया भगवान ने मतलब 9.22 श्लोक में बताया गया अनन्य चिंतयमाम ये जनो परिपश्यते तेषां नित्ययुक्तानां योगमाश्रयं वहामि अहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। तो भगवान यहाँ पे बता रहा है जो हमारा मतलब हमारा सेवा में हमेशा लगा रहता है, हमारा चिंतन में हमेशा लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं उनको जो नहीं आता है मैं उनको देता है, और जो है उनके पास जो भी है मैं क्या बोलते हैं आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, उनको क्या संभाल के रखता है। और जो मतलब भगवान का विमुख है, मतलब भगवान को माने देखता नहीं, भगवान को पसंद करता नहीं, भगवान नाम भगवान का ऐसे हम लोग भौतिक जगत में सुनता है देखता है, मतलब भगवान का नाम सुनने में उसको मतलब उसको पसंद नहीं होता है। उसके साथ अगर फिल्म का गाना बोलो, कोई फालतू जो प्रज्वल जो बोलते हैं हम लोग, वो प्रज्वल पे में अगर बात करने को तो सुनने में मजा आता है। मेरे को मैं भी देखता है कभी कभी हमारा जैसे कॉलीग के साथ में कभी भगवान के साथ अभी कोई कुछ चीज शेयर करने लगता है, अरे यार छोड़ो ना, वो बात नहीं, अभी उसका क्या टाइम नहीं है, मतलब वो अवॉइड करना चाहता है। तो मैं कभी कभी क्या मतलब कहने चाहता है लेकिन कोई स्टोरी भगवान का तो फिर क्या है छोड़ देता है। तो इसमें हम लोग जो अभी कह रहे हैं, तो जो भगवान का विमुख है, भगवान का तरफ देखता नहीं, तो वो क्या है माया में पड़े रहता है। उसका केयर कौन करता है, कौन करेगा, वो क्या उसका केयर जो मतलब भगवान के पास जो नहीं देखता उसका केयर कौन, माया देवी है। तो भगवान का तो ये जो है ये भगवान का बहिरंगा शक्ति होता है, माया देवी भगवान का बहिरंगा शक्ति है। ये किसको, ये जो नॉन डिविटीज है, जो भगवान को मतलब विमुख होता है वो मतलब वो माया देवी के साथ उनका बहिरंगा शक्ति के साथ उनको संबंध होता है। और जो भगवान को सेवा करता है
भगवान को देखता है वो भगवान का अंतरंगा शक्ति में होता है। तो इसमें जैसे चैतन्य चरितामृत कहा गया है, अनादिर बहिमुखे जीवा भोगवांछा करी निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। मतलब जब कोई जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है, तो वो क्या है, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा प्रकाश करता है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करेंगे, तब माया उसको क्या कहते हैं, झपट कर पकड़ लेता है। मतलब फटाक से उसको माया पकड़ लेता है, तो वो माया का जालों में उसमें फंस जाता है। तो भक्त को नहीं है, क्योंकि भक्त को जो है भक्त को अंतरंग शक्ति है, शक्ति में क्योंकि भक्त जो होता है अंतरंगा शक्ति में होता है। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की शक्ति है, जैसे अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। तो ये जो अंतरंगा शक्ति, क्योंकि भगवान से जो भक्त होता है हमेशा भगवान का कार्य में लगा रहता है, तो माया उसको झपट नहीं सकता है, मतलब माया उसको पकड़ नहीं सकता है। तो हमको सिर्फ एक मतलब हमको सिर्फ एक ही इच्छा रखना है मन में। वो इच्छा क्या है, हम भगवान को और शुद्ध भाव में कैसे सेवा कर सकता है, कपट भाव में नहीं। कपट भाव मतलब क्या होता है मालूम है? कपट भाव मतलब है भौतिक इच्छा रख के, भौतिक इच्छा रखना। तो या उसी भाव में जो सेवा होता है वही कपट भाव होता है। मतलब एक्शंस, भगवान हमको ये दियो तुमको वो दिएगा, भगवान ये करो हमें वो करेगा, मतलब ये चाहिए वो चाहिए। तो ये माया देवी कृपा भी, मतलब वो जो है भगवान, आप जब मंदिर में जाएंगे, जब माया देवी का पूजा करेंगे, माया देवी के ऊपर कृपा करेंगे, तो माया देवी भी आपको ऊपर, मतलब माया देवी आपको ऊपर कृपा करते हैं। जब आपको वहां पे जाके माया देवी का प्रार्थना करेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये जो कृपा होता है ना, कृपा दो प्रकार का होता है। एक कपट कृपा है, एक निष्कपट कृपा होता है। तो कपट कृपा में क्या होता है, कपट कृपा में होता है व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होता है, होते रहते हैं। वो मंदिर में फूल नारियल लक्ष्मी चढ़ाते रहेगा, माया देवी उसका इच्छा भी पूर्ति करते रहेगा। तो इसी तरह जो वो व्यक्ति जो है ये संसार जीवन में फंसते रहता है और 84 लाख जोनियों में घूमते रहता है। ये किस लिए? ये अज्ञानता कारण। ये अज्ञानता कारण वो माया देवी को, माया देवी का जालों में फंस के 84 लाख जोनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में फंस जाता है। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना। तो हम ही एक्चुअली क्या है, हम सभी लोग क्या जानता है, एक बार जन्म लेना कितने कष्टदायक है माँ का गर्भ में। तो उसी तरह है माँ का गर्भ में जो जन्म लेना कितना कष्ट निकाल। एक लेक्चर में सुन था, जैसे एक छोटा बॉक्स में किसी को डाल के, मतलब ड्रेन का पानी और उसका कीड़ा देने के बाद उसको अगर बॉक्स में बंद कर दिएगा, तो माँ का गर्भ में जब एक बच्चा रहता है उसको मतलब उसी प्रकार से दर्द होता है। और उसमें देखता है जो माँ जब कभी मतलब मिर्ची खाता है, माँ जब कोई मतलब स्पाइसेस कुछ खाता है, तो ये जो बच्चा को, जो माँ का गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, तो उसका जो स्किन होता है, स्किन इतना सॉफ्ट होता है। तो माँ जब कभी गलती से जानबूझ के बाद कोई इसका टेस्ट में कोई मिर्ची खा लेते हैं, भाई कोई चीज खा लेते हैं माँ का टेस्ट में, तो बुरा का मतलब उसका जो बच्चा का जो स्किन होता है ना, स्किन में बहुत जलन होता है और उसको बहुत कष्ट होता है। तो भगवान से वो तब इतना कष्ट होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हमको यहाँ से निकालो, हम जाके तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा पूजा करेंगे, तुम्हारा सेवा में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब बाहर आता है तब सब कुछ भूल जाता है। ये जो अपना भौतिक कार्यों में जब देख के, अरे मेरा बाबा का पास तो बहुत बड़ा गाड़िया है, मेरा बाबा का तो बहुत बड़ा बंगलो है, तो वो देख के वो माया जाल में फिर दोबारा जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाता है। तो इसी तरह क्या है, मृत्यु जब आता है ना, उसमें भी बहुत कष्ट है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, जब मृत्यु आता है तब जीव आत्मा बाहर निकलने नहीं चाहता है। शरीर के अंदर रह के जीवात्मा शरीर में आसक्त हो जाता है, तो बाहर निकलने नहीं चाहता है। तो उसको क्या है, ये जो जीवात्मा है ना, उसको कष्ट दिया जाता है।
ये बाहर निकलने के लिए मृत्यु के टाइम में जीवात्मा शरीर में आसक्त रह के आसक्त हो जाता है, तो उसको बाहर निकलने नहीं चाहता है, तो उसको कष्ट दिया जाता है। क्या कष्ट दिया जाता है उसको? मतलब शरीर में 40,000 जो बिच्छू होता है, 40,000 बिच्छू काटने में जितने कष्ट होता है उसको शरीर में उतना कष्ट दिया जाता है, तो उतना दर्द भी उनका होता है, उनको होता है। और वो जो दर्द का कारण जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, तो इतना ही कष्ट होता है जो जन्म और मृत्यु में, तो इसको बोलता है कपट कृपा। ये जो जन्म मृत्यु का जो कष्ट होता है इसको बोलता है कपट कृपा। और निष्कपट कृपा क्या होता है? निष्कपट कृपा वही होता है जब कोई भगवान का शरण में जाता है, तो 4 प्रकार का लोग भगवान का पास जाता है, क्या? आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, तो इसको बोलते हैं निष्कपट कृपा। भगवान से प्रेम जागृत करता है। ये निष्कपट कृपा में जब हम लोग निष्कपट कृपा में जाएंगे तो उसमें क्या होता है? प्रेम जागृत करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। आर्तो व्यक्ति कौन होता है? जो दुखी होता है, जिसको बहुत दुख होता है तो भगवान का शरण में आता है। अर्थात जिसको धन चाहिए, तो और जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं संसार का परम सत्य क्या है। और ज्ञानी जो है बुद्धि योग द्वारा स्वयं जो उसका जो शक्ति को और समय को, उनका जो समय है उनका शक्ति को भगवान का सेवा में लगाता है, वही ज्ञानी होता है। तो भगवान ये जो 4 प्रकार का लोग होता है, भगवान एक ज्ञानी को ज्यादा पसंद करता है। और ये माया का जो निष्कपट कृपा होता है, बुद्धि योग द्वारा स्वयं शक्ति और समय को जो भगवान को सेवा में लगाता है, माया उसके ऊपर निष्कपट कृपा करता है। तो यही होता है निष्कपट कृपा। निष्कपट कृपा क्या है? भगवान का भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान का प्रति प्रेम जागृत करना होता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में जो बताया गया, भगवान का भक्त भाव में होता है, तो भाव इस तरह से ही होता है। निष्कपट कृपा से व्यक्ति का ऊपर मतलब निष्कपट ऊपर से व्यक्ति ऊपर तक पहुंच जाता है। तो भगवान का जो हम लोग भक्ति करने, हम लोग जो भगवान का भक्ति करता है ना, ये इसका इतना फायदा है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, इतना फायदा है। हम लोग सिर्फ हमारे लिए भक्ति नहीं, जो हम लोग जो भक्ति करता है सब मिलके, ये सिर्फ हमारे लिए भक्ति नहीं करता है, माता पिता को, भाई बंधु सबका लिए हम लोग ये करता है, मतलब भक्ति करता है। इवन यहाँ पे जो नहीं है, जो मर गया, उसके लिए भी हम लोग भक्ति करते हैं। आगे और पीढ़ी, पीछे का पीढ़ी, जितना पीढ़ी आए उसके लिए भी हम लोग भक्ति करता है। जो आने वाला है उसके लिए भी हम लोग भक्ति करता है। ये है भक्ति का फायदा। तो मैंने जो एक लेक्चर में बताया कि मैंने सुना था, जब कोई परिवार में भक्त निकल जाता है तो पितृलोक में मिठाई बांटता है। मतलब कोई परिवार में जब उनका जो पितृलोक जो होता है, पितृलोक में जब पहले कोई मर गया, तो जब देखता है हमारा परिवार में कोई भक्त निकला, तो वहां पे मतलब मिठाई बांटता है पितृलोक में। पितृलोक मतलब पितृलोक, क्योंकि वो सोचता है हमारा मुक्ति अभी निश्चित है। पितृलोक में उन लोग देखता है यहाँ पे कोई भक्त बन गया हमारा घर पे, तो हमारा मुक्ति अभी निश्चित है। तो हम लोग क्या है, 13 लोक में होता है। 13 लोक अर्थात भुवन, 13 भुवन होता है। 6 तो ऊपर है, 7 नीचे है। तो ये जो 13 भुवन होता है, तो 13 भुवन में कहाँ पितृलोक रहता है? एक तो भू, भूवर, स्वर्ग। तो भूवर में क्या होता है? भूवर में पितरलोक वास करता है। और हमारा कार्य कला उनको जीवन में अक्सर पड़ता है। हम जो कुछ भी करता है उनका जीवन में भी अक्सर पड़ता है। तो धीरे धीरे जब पितरलोक को तर्पण देना, हम लोग जब तर्पण, जैसे मिरेकल में जब हमारा एक टाइम आता है साल में एक दफा, तो गंगा में हम भी लास्ट टाइम में गया था, गंगा में स्नान करके तब तर्पण करना पड़ता है। पितृलोक का उद्देश्य में, पितृलोक उद्देश्य में तर्पण करना पड़ता है। माता पिता जो भी है, अगर दुनिया में जो नहीं है, सबका लिए, 14 पुरुष का लिए तर्पण करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब पितरलोक में तर्पण देना बंद हो जाता है,
तो पितर लोग नीचे गिर के धरती में आ जाता है। जब हम लोग तर्पण बंद करते थे तो उन लोग क्या होता है, ये धरती में आ जाता है, नीचे गिर के नीचे आके अपने कार्य में लगा जाता है। फिर जन्म मृत्यु चक्र, जन्म मृत्यु जरा विधि का चक्र में घिर जाता है। अगर परिवार में कोई भक्त बन जाता है, पितर नीचे गिरता है जरूर है, लेकिन भक्त बन जाता है, भक्ति करता है, भक्ति करके एलिवेट होके फिर ऊपर जाता है। तो इसीलिए पितर लोक में खुशियां मनाई जाता है। चलो परिवार में कोई भक्त निकला, अभी है हमारा गोलोक धाम जाना निश्चित है। पितर लोक से पितर सोचता है, तो यही है भक्ति करने का हमारा सबसे बड़ा फायदा है। तो भगवान अपना भक्तों का कभी कभी क्या होता है, विपत्तियों में भी डाल देता है जानबूझ के, क्योंकि उसका पाप कर्म जो है उसका इफेक्ट से वो निवृत्ति हो सकता है। ऐसा जब होता है, भगवान भक्तों का भौतिक चीजों को छीन लेता है। जो भौतिक चीज होता है, जैसे उसको गाड़ी बांग्लो कभी कभी होता है ना, तो भगवान उसको छीन लेता है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, नारद मुनि का माँ का जब देहांत हो गया था, तो नारद मुनि कभी भगवान को पूछा नहीं, हे भगवान, मैं आपका भक्तों का इतना सेवा करता है, आपने मेरा माँ को ही छीन लिया। लेकिन एक कभी प्रश्न ही नहीं किया नारद मुनि। हम लोग इससे पहले हम लोग पिछले श्लोक में बहुत से मतलब पहले थोड़ा पढ़ा था ये नारद मुनि के बारे में, तो एक का भी नहीं बोला। तो एक प्रकार से इनको क्या है, मतलब जब भगवान का भी कुछ छीन लेता है तो एक प्रकार से क्या होता है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो नारद मुनि क्या सोचा, मेरा माँ को छीन लिया, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी है, और भी भक्ति करने में है। तो नारद मुनि क्या है, तो नारद मुनि और सत्य का तलाश में निकल पड़ी है। तो ऐसे ही भगवान भक्तों को विपत्तियों में डाल देता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ जो विपत्ति है, वो क्या सोचता है, ये भगवान हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया। क्या अपॉर्चुनिटी, हम आगे जाके और भी हमारा भक्तियों और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो तात्पर्य में जो दिया हुआ है 12 महाजन, ये जो 12 महाजन का है, 12 महाजन की कृपा से हम लोग भगवान का महिमा का जान सकता है। हरे कृष्ण। काफी समय ले लिया, हरे कृष्ण, ये देखा ही नहीं समय में, सॉरी है। मैं यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ कमेंट है, कुछ जोड़ना है, प्लीज। और हमसे कोई गलती हो गया, कोई प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए गोपी मंडल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कमेंट है, कुछ है, प्लीज कृपा करके हमको रेक्टिफाई कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रहा है? हेलो। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु। हाँ नहीं प्रभु, अच्छा था क्लास जो आपने बताया, निष्कपट कृपा और कपट कृपा, और कैसे भक्त लोग जो है कपट हेतु रख के भगवान से प्रेम करते हैं। तो वो पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु बहुत 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 अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे, मतलब आपके बोलने से लग रहा था आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है।
और इतने अच्छे जो पॉइंट्स, मतलब ऐसा कोई कोई पॉइंट्स ऐसा कि कभी सुना भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से आपने तैयार की थी और बहुत अच्छा बोल रहे थे। आपने तो टाइम नहीं देखा, आज तो हम भी टाइम नहीं देख रहे थे कि कितना टाइम हुआ है। सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, जय श्री प्रभुपाद की जय। Namaskar, it was very nice. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। तो ही सॉरी, मैं बाहर था, इसके लिए मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आपका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया। और नारद मुनि जी और अपने जैसे बताया 12 महाजन जो पिता, उनको सब कुछ पता रहता है भगवान के बारे में, वो पॉइंट अच्छा लगा। फिर नारद मुनि के बारे में आपने जो ग्लोरीफाई किया, और फिर जैसे अपने भगवत गीता से अर्ता अर्ता आते जितने जो भगवान के पास आते उनके बारे में बताया। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, प्रेम से गौर प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जय जय, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु। और आपका जो टोन रहता है बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही एकदम आप ऐसा बोल रहे कि भक्ति मतलब कितना, और आपका वो जो पॉइंट था कि जो भी भक्ति करता है उसका आगे जनरेशन को भी जो लाभ मिलता है, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था प्रभु। तो उस पे एक जस्ट थोड़ा जोक सा है, लेकिन हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं। तो एक रेस्टोरेंट पे बोर्ड लगाया हुआ था कि जो चाहे खाइए, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं, आपका जो अगला जनरेशन मतलब आपका जो बेटा है वो पे करेगा। तो एक आदमी जाके अच्छा खा लेता है, और जब निकलता है तभी वो बिल थमाता है उसको। वो बोलता है आपने तो बोला था खाली खाना है, बिल जो है बेटा पे करेगा। तो वो बोलता है हाँ, ये जो है आपके पिताजी ने खाया था, वो उसका बिल है। तो इस तरह से मतलब अगर देखेंगे हम लोग, अगर भक्ति में है तो डेफिनेटली हमारे जो एंसेस्टर है उनका भी बहुत सारा हमको हेल्प है, उन्होंने भी कहीं तो अच्छी तरह से भक्ति की होगी और उसकी वजह से हमको फायदा मिल रहा है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है हमको, और हमारे आगे के जनरेशन के लिए हमको अच्छी तरह से भक्ति करनी है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास था, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। क्योंकि मैं भी ऐसे सुना, अभी 14 पुरुष का क्या उद्धार हो जाता है। कोई मतलब संसार में कोई अगर भक्त बन गया, 7 पुरुष तो वाइफ का 7 पुरुष होता है, और हमारा जो 7 पुरुष होता है 7 जनरेशन 14 जनरेशन, तो उसमें मुक्त हो जाता है कोई अगर भक्ति करेगा तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो निष्कपट और कपट कृपा के बारे में आपने समझाया था प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। और जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे जो भक्ति करते हैं उससे सिर्फ उसको ही नहीं, परिवार में सबको लाभ होता है, कुटुंब में। तो धन्यवाद, इतना अच्छा आपने समझाया प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद।